Welcome again our YouTube channel Malik Ganit Classes. Today we discuss about exercise 7.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको दिया गया है ये कह रहा है सोल्व करिए। ए ये 2/3 प्लस 1/7, बी 3/10 प्लस 7/15, 4/9 प्लस 2/7, ये ए बी सी डी ये एन तक आपको इस तरह से पार्ट्स दे रखे हैं। आपने इनको सम करना है, इनका जोड़ करना। कई क्वेश्चन में माइनस दिया तो आपने माइनस करनी है। तो देखिए कैसे करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। हेयर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज गिवन डेट 2/3 प्लस 1/7। Here we have to add 2/3 plus 1/7. Now, how to add these fractions? First of all we have to take LCM of 3 and 7. First of all we have to the LCM of 3 and 7. 3 and 7 LCM होगा, क्या होगा? LCM of 3 and 7. 3 we have to make the factors of 3 number and we have to make the factor of 7, but we know that 3 is a prime number and 7 is also a prime number, so we can't make the more factor than 1 and 3 of the factor of 3 and so on. 7 is also a prime number, so we can't make the factor more than 1 and 7 of number 7. So factor of 3 is equal to 3m or 7 is 7. So 3 factor of 3 is equal to 3 multiply 1 and factor of 7 is equal to 7 multiply 1. So we have LCM of these numbers, then LCM is 3 multiply 7 is equal to 3 7 ja 21. So we have the LCM of 3 and 7 is equal to 21. So now we have to write this LCM below these fractions. Here we write the LCM of 3 and 7 is equal to 21. Now we have to divide 21 by 3 and we got the quotient as 7. And then 7 is multiplied by 2 plus now 21 is divided by 7 and we got the quotient 3 and 3 is multiplied by 1. Now we have to multiply 2 and 7. 2 7 ja 14 plus multiply 3 and 1, 3 1 ja 3 divide by 21. 14 plus 3 is equal to 17 by 21. This is a proper fraction, so we have the answer of this addition. 2/3 plus 1/7 is equal to 17 by 21. Clear that? Next question here is 3/10 plus 7/15. Now first of all we have to take the LCM of 10 and 15. तो LCM यहाँ पे we have to write down here LCM of 10 and 15. Inside you can show the LCM of 10 and 15. First of all we have to divide these numbers by 2. 2 5 are 10. 15 is not divisible by 2, so 15 remains same. Now we have to divide these number by 3. 5 is not divisible by 3, so 5 remains 5 same, and 3 divided by 15, sorry 15 is divided by 3, then we got the answer 3 5 ja 15. Now here both is same, 5 and 5. Now we know that 5 is a prime number, so 5 is only divisible by itself. 5 is divisible by only itself. Then LCM is here 2 multiply 3 multiply 5. We got LCM by multiplication of 2 multiply 3 multiply 5 is equal to 2 3 ja 6, 6 5 ja 30. We have the LCM of 10 and 15 is equal to 30. Now we have write down this LCM
write here is equal to 30. Now we divide 30 by 10 and we go to the LCM, we go to the quotient is equal to 3. When we divide 30 by 10, we go to quotient 3 and quotient is multiplied by numerator, that is 3 and 3 plus. Now we have to divide 30 by 15 and we go to the quotient 2 and 2 is multiplied by 7. Here 7 multiplied by 2. Now we write here 3 multiply 3 is equal to 9 plus 7 to the 14 divided by 30. Now we have to add 9 plus 14. 9 plus 14 is equal to 23 by 30. We know that this is a proper fraction because here numerator is smaller than denominator. This type of fraction is known as improper fraction. So we have to solve this question like that. Clear? Now we have solved the question C part. Here in C part given by 4 by 9 plus 2 by 7. First of all we have to take the LCM of 9 and 7, but look at numbers. Here 9 is a composite number but 7 is a prime number. Whenever you have got here a prime number, then their LCM will be the multiplication of that numbers. So LCM of these numbers is equal to multiplication of that numbers. Because we have here 7 which is a prime number, we can't make the factors of 7. So we have to multiply 9 and 7. We go to the our LCM. 9 7 is equal to 63. Now we have to divide 63 by 9. 9 7 63. We go to quotient is equal to 7 and 7 is multiplied by 4. Plus now 63 is divided by 7 and we go to the quotient 9. 9 is multiplied by 2. Now we have to multiplication of 7 and 4 and 2 and 9. Multiplication of 7 and 4, 7 4 28 plus 2 9 18 divided by 63. We have to add 28 plus 18. Then sum of 28 and 18 is equal to 8 plus 8, 16, 1 here, 2 plus 3 plus 1, 4 divided by 63. Again this is a proper fraction. So we can't make the mixed fraction of this fraction because this is a proper fraction. Because numerator is smaller than denominator. So this is a proper fraction. So we have all solved this question like that. You can do this like question D part, E, F. In question G we have subtract 3 by 4 minus 1 by 3. आपने जो ये पार्ट हमने दिए ABCDEF, ये मैंने आपको ABC पार्ट करके दिखा दिए. इनमें सभी में प्लस करना था, वो आपने ऐसे करना है. अब हमने माइनस करना है, तो अब आपको मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ. माइनस कैसे करना, बिल्कुल सेम तरीका है माइनस करने का भी. कैसे करेंगे देखिए. In part question first, in G part, here is given that 3 by 4 minus 1 by 3. Now we have to subtract this. First of all we have to take the LCM of 3 and 4. We know that 3 is a prime number, so LCM of these number is equal to multiplication of that numbers. 4 3 is 12. Now we have to divide 12 by 4 and we go to the quotient is equal to 3 and numerator is also 3. Then 3 multiply 3 is equal to 9. Clear? Now we have divided 12 by 3. 3 4 is 12. 4 1 is 4. We write here 3 3 is 9 minus 4 1 is 4 divided by 12 is equal to 9 minus 4 is equal to 5 divided by
12. This is a proper fraction and we have our answer. यहाँ पे क्या करना आपने, 4 और 3, ये ना 4 और 3 में 3 एक प्राइम नंबर है। जब भी आपका नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो आपने एलसीएम निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो 4 और 3 है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे एक एलसीएम, दोनों में से एलसीएम या दोनों आपके प्राइम नंबर हो या दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर हो, तब अपना एलसीएम ऐसे निकालना है। ठीक है, आपने फिर 4 से 12 को डिवाइड करोगे, आपका क्वेश्चन भागफल 3 आएगा। वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 से जब 12 को डिवाइड कर दे तब 4 आएगा आपका क्वेश्चन। 4 की और 1 की मल्टीप्लाई कर दी तब ये आ गया। ऐसे ही आपने एच पार्ट को करना बिल्कुल सेम। आई पार्ट में अब आपको दोबारा आई पार्ट करके दिखा रही है। वहाँ पे 3 टर्म्स दे रखे हैं, आपको इन तीनों टर्मों का जोड़ करना है। तो करेंगे, यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया गया है, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको 3 फ्रैक्शन दे रखी तो कोई बात नहीं है। आपने तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। तो टेक एलसीएम, यहाँ पे लिख लेंगे आप, टेक एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 2। आप 3, 4 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। आपने निकाल के देखा 3, 4, 2, इनका एलसीएम कितना आया हमारे पास। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं हुआ, 3 2 जा 4, 2 1 जाइए। यहाँ पे 2 3 1 1 और ये क्या आ गया, 3 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। नाउ आवर एलसीएम इज 12। तो एलसीएम हमने निकाल लिया, ये आपने एक साइड में कर लेंगे। एलसीएम हमने निकाल चुके हम, हमारा एलसीएम आ गया 12। ये 3 था, ये 4 है, तो हमने एलसीएम निकाल लिया, हमारा एलसीएम आ गया 12। अब आपने क्या करना है, इस 3 से 12 को डिवाइड करोगे। 3 से 12 को, 12 इज डिवाइडेड बाय 3, देन वी गो टू द क्वोशंट इज इक्वल टू 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस when we divide 12 by 4, then you go to the quotient is equal to 3 and 3 is multiplied by 3 plus when we divide 12 by 2, we go to the quotient is equal to 6 and we multiply 1 multiply 6. Here we have to multiply all these. 2 multiply 4 is equal to 8 plus 3 3 is equal to 9 plus 1 6 is 6 divide by 12। यहाँ पे ये 8 आया, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पे हमने इनको प्लस करना है। देन ऐड ऑल दीज फ्रैक्शंस, इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। क्या आएगा, 9 + 8 17, 17 + 6, 17 + 6 इज इक्वल टू 23, 23 डिवाइड बाई 12। हेयर दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज हेयर numerator is larger and denominator is smaller, so we can make the mixed fraction of this improper fraction. How make mixed fractions? We divide 23 by 12। आपने इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी, कैसे बनाते हैं, जो 23 उसको 12 से डिवाइड करिए। 12 2 जा 24, 2 जा पे टेबल ज़्यादा हो जाएगी, 1 जा पे चलाएंगे, 12 1 जा 12। तो ये आएगा आपका 3 - 2 1, 2 - 1 1, तो ये बच गया। ये जो आपका क्वोशंट आया ये आपने सबसे आगे लिखना 1, और जो 11 आया ये आपका ऊपर, और डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आंसर हो गया। दैट क्लियर, ये था। ऐसे ही आपने जे पार्ट को ऐड करना है। ऐसे ही आपने, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मैं आपको पार्ट एक करके दिखा देता हूँ कि पार्ट यहाँ पे आपको ना मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी, तो आप चेंज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction. Here 1 unit 1/3 plus 3 unit 2/3। आप इनको चेंज करिए। कैसे चेंज करते हैं, 1 multiplied by 3 plus 1, 3 1 जा 3 plus 1 is equal to 4/3 plus 3 3 जा 9 plus 2 11/3। Now here both denominators is same, so LCM is also same. Clear? Now 3 is divided by 3, then we go to the quotient is equal to 1 and 4 is equal to multiply by 1 plus when same 3 is divided by 3, we go to the quotient is equal to 1 and we have to multiply 11 by 1. We 4 1 ja 4
11 वन जा 11 डिवाइड बाई 3, 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 बाई 3। वी नो डैट 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, दिस इज इक्वल टू 5 बाई 1, बट वी डोंट राइट in denominator 1, so we write here only 5, that answer is only 5। क्लियर है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास 15 बाई 3 आया, 3 5 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 बाई 1 बचेगा। आपको पता 1 डिनोमिनेटर में नीचे 1 नहीं लिखना आपने, तो यहाँ पे आपका आंसर केवल 5 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आपने इसको करना है। ये माइनस वाले हैं, आप आसानी से माइनस कर दोगे, ये भी माइनस वाला कर दोगे। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो हमने पार्ट छोड़े हैं इनका आंसर आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हेयर सेकंड क्वेश्चन इज हेयर गिवन दैट दिस क्वेश्चन सेज दैट सारिका bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। ये कह रहा है कि जो सारिका है उसने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बोट। ये कह रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि दोनों ने मिलकर टोटल कितना रिबन खरीदा है। देखो सिंपल है, सारिका ने 2/5 मीटर खरीदा है, ललिता ने 3/4 खरीदा है। दोनों ने पूछ रहा है टोटल कितना खरीदा, तो दोनों का जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन बोट बाई सारिका। यहाँ पे हमने लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन बोट बाई सारिका। सारिका ने कितना रिबन खरीदा, सारिका ने खरीदा है 2/5, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2/5। नाउ अब लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन बोट बाई ललिता इज इक्वल टू 3/4। ललिता ने 3/4 खरीदा है, सारिका ने 2/5 खरीदा है। तो अब पूछा है दोनों ने टोटल कितना खरीदा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल लेंथ ऑफ रिबन, यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन बोट बाई बोथ ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के द्वारा खरीदे गए रिबन की कुल लंबाई। दोनों ने टोटल कितना खरीदा, इसने दोनों का ऐड कर देंगे 2/5 प्लस 3/4, दोनों का ऐड करेंगे 5 और 4। देखो 5 एक प्राइम नंबर है, तो आप क्या करोगे 5 को डिवाइड, 5 एक प्राइम नंबर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा 5 4 जा 20। अब 5 से 20 को डिवाइड करोगे 4 क्वोशंट आएगा, आपने उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, प्लस फिर यहाँ पे 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 आपका क्वोशंट आएगा, ऊपर 3 है, 3 के 5 ये आ जाएगा ये। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 प्लस 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 20। क्लियर। 15 प्लस 8 ये कितना हो गया मेरे पास 23 डिवाइड बाई 20। अब देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, न्यूमरेटर लार्जर है डिनोमिनेटर छोटा है स्मॉलर है, सो दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ वी हैव टू डिवाइड द 23 बाई 20 टू मेक द मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए अब इसको हमको डिवाइड करना होगा। तो देन डिवाइड 23 बाई 20, वी हैव टू टेबल इज इक्वल टू 1, टेबल 21 जा 20, 22 जा 40 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जा पे टेबल चली 21 जा 20, then remainder is equal to 3. Now we have to write down the mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आएगी, कैसे लिखनी है आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो आपका क्वोशंट आया वो सबसे आगे लिख लीजिए, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर ले जाइए, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको डिवाइड में लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गई 1 यूनिट 3/20 टोटल मीटर। ये मीटर था तो ये मीटर आ गया। तो उन्होंने टोटल कितने मीटर रिबन खरीदा है 1 यूनिट 3/20। क्लियर।
ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए स्टूडेंट, here question third is given that question third is says that Naina was given 1 unit 1/2 piece of cake and Najma was given 1 unit 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake given to both of them. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नैना को एक केक का इतना हिस्सा मिलता है एंड नजमा को कितना हिस्सा दिया है। ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। उनको टोटल कितना केक दिया गया है ये पूछ रहा है हमारे से। तो यहाँ पे क्या लिखना हमने, देखो जितना नैना को दिया जितना नजमा को दिया दोनों को टोटल करना है तो जोड़ कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ केक, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ केक गिवन टू नैना। नैना को कितना केक दिया गया है, अमाउंट ऑफ केक गिवन टू नैना। नैना को कितना केक दिया गया है 1 यूनिट 1/2। अब इसको ने मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 1 2 जा 2 + 1 दैट इज 3/2। ठीक है, नाउ वी राइट हेयर अमाउंट ऑफ केक गिवन टू नजमा। नजमा को कितना केक दिया गया है, वी राइट हेयर नजमा को दिया गया है 1 यूनिट 1/3 एंड दिस इज आल्सो ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। देन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 1 जा 3 + 1, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करना। 3 1 जा 3 + 1, ये आंसर आया हमारे पास 4/3। क्लियर। देखो नैना को इतना केक दिया गया है, नजमा को इतना, तो उन्होंने पूछा टोटल कितना केक दिया गया है दोनों को। तो दोनों के लिए जोड़ कर देंगे दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। उन दोनों को दिया गया टोटल केक की मात्रा, कुल टोटल केक उनको कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 3/2 + 4/3 ये दिया गया है। दोनों का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। देन व्हेन वी हैव हेयर प्राइम नंबर्स देन आवर एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स। जब भी यहाँ पर आपके पास ना प्राइम नंबर होंगे तो आपका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की गुणा ही आपका एलसीएम हो जाएगी। 2 3 जा 6। अब 2 से व्हेन वी डिवाइड 6 by 2 we got the quotient is equal to 3 and 3 is also numerator, then 3 is multiplied by 3 plus when we divide 6 by 3 then we got the quotient is equal to 2 and 4 is numerator, then multiplied 4/2. We have 3 3 is equal to 9 and 4 2 is 8 divided by 6. 9 plus 8 is equal to 17/6. This is a improper fraction. We have to convert this fraction into mixed fraction. Here we divide 17/6. Then we read the table of 6 and 6 3 is 18 which is greater than 17. Now we have to read the table of 6 to 2. 2 2 is 12. We have to minus 7 minus 2 is equal to 5. Now we write the mixed fraction. Mixed fraction is 2 unit 5/6. 2 unit 5/6. Our answer is 2 unit 5/6. दोनों को इतना केक दिया गया टोटल। तो उसने हमारे से ये पूछा था कि दोनों को टोटल कितना केक दिया गया है, तो दोनों को टोटल ये केक दिया गया है। क्लियर है। ये था आज के लिए, बस यही 3 क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और फैला दीजिए, साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। बाय।